some isomeric classification we discussed in the previous lectures. These are different classifications that we have discussed earlier in the first year in the stereochemistry. The words are anomers and the epimers. Anomers and epimers, you can say these are the diastereomers. These are the diastereomers. What are the diastereomers? Diastereomers are those isomers which are having same configuration at all carbon atom except one carbon atom. Configuration differs in the one of the carbon atom and it remains similar at the another carbon atom. The two structures of the saccharides, monosaccharides, these are in front of you. Both are of the glucose, but one is alpha D glucose, another is beta D glucose. How alpha and beta they are designated? They are designated alpha and beta because of this hydroxyl position at the first carbon atom. What is the identity of this first carbon atom? It should be kept always in mind. It is a aldehydic carbon atom. So this carbon atom or this OH, it is not similar to the another hydroxyl group. All the hydroxyl groups, they are alcoholic one. The identity of it seems to be alcoholic, but this is a hemiketal formation here because there is a internal lecton formation with the first carbon and the fifth carbon atom. So here the OH group, it is introduced because of the hemiacetal formations. So if the configuration differs at the hemiacetal carbon atom only and it remains similar at the another carbon atom, we defined them as the anomers. तो बुक में कई बार ऐसा भी लिखा रहता है कि C1 पे जो वो कन्फिगरेशन वेरी कर रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट कार्बन एटम होगा. इट मे बी सेकेंड, इट मे बी थर्ड, बट इट शुड बी हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन एटम. तो अगर फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो उसमें सेकेंड कार्बन एटम पे ये कन्फिगरेशन चेंज होगी, लेकिन अगर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन एटम पे ये कन्फिगरेशन डिफर करेगी. So alpha and beta glucose, these are the anomeric forms or these are the anomers. Then we discussed about the another diastereomers, they are the epimers. तो word जो वो epimers आ रहा है. एपीमर इज व्हाट कि अगर हेमी एसिटल कार्बन एटम के बजाय किसी और कार्बन एटम की बात कर लो, जैसे सेकंड कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो इसमें सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल इस साइड को है, यहां सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल इस साइड को है. तो इतनी सी डिफरेंस की वजह से एक को हम डी मेनोज बोलेंगे, दूसरे को हम डी ग्लूकोज बोलेंगे. सो डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज दे आर द C2 एपीमर्स. क्या वर्ड यूज किए इनके लिए? C2 एपीमर्स, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट कन्फिगरेशन एट द सेकंड कार्बन एटम. इन द सिमिलर वे इफ आई चेक द फोर्थ एंड this galactose and glucose, तो फोर्थ कार्बन एटम में जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्फिगरेशन डिफर करती है. बाकी सब कार्बन एटम पे कन्फिगरेशन क्या है? सिमिलर है. तो हम ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को जो बोलेंगे, वी विल से इट इज ए C4 एपीमर्स. क्या बोलेंगे इसको? C4 एपीमर्स. सो एपीमर्स दे आर अगेन डायस्टेरोमर्स. द एनोमर्स दे आर अगेन द डायस्टेरोमर्स. What? How we check the configuration? The configuration, if it alters at the particular carbon atom other than the hemiacetal carbon atom, then or hemiketal carbon atom, then it is epimer. Otherwise, at hemiacetal or hemiketal carbon atom, it is the anomers. तो सेकेंड कार्बन पे डी मेनोज और ग्लूकोज डिफर कर रहे हैं तो C2 एपीमर्स हुए और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जो हैं वो C4 एपीमर्स हुए. कैन बी कंपेयर मेनोज एंड ग्लूकोज? नो, दे आर डिफरिंग एट द टू कार्बन एटम्स, सो दीज आर नॉट द एपीमर्स. तो एपीमर्स के तौर पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का पेयर और ग्लूकोज और मेनोज का पेयर आया है.
फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. वी कैन डू द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज इनटू द ग्लूकोज. सो प्राइमरी नेचर दैट वी हैव टू डिस्कस, व्हाट आई हैव टू चेंज. केवल 2 कार्बन एटम से जो है वो वेरिएशन से आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर सकते हैं. यहां पर CH2OH होना चाहिए, ये रहा नीचे थोड़ा पोर्शन दिख रहा है, और सेकंड कार्बन पे कीटोनिक कार्बन एटम होना चाहिए. सो सेकंड कार्बन पे कीटोनिक कार्बन एटम है. तो सिंपल सी बात है कि इसको हमने रिड्यूस करना है, उसको हमने ऑक्सीडाइज करना है. तो सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं. तो ऑक्सीडाइज करने का एक बेहतर तरीका है कि आप उसको ग्लूकोसा जोन में चेंज कर दें. किसमें चेंज कर दें? ग्लूकोसा जोन में. वंस यू चेंज इट इनटू ग्लूकोसा जोन, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन आइटम पे ये फिनाइल हाइड्रोजन का ग्रुप जो वो आ जाएगा. जैसे इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे, वाई द हाइड्रोलाइसिस, द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्बन एटम दे चेंज अगेन इनटू एल्डिहाइड, बट सेकंड कार्बन एटम चेंजेस इनटू द कीटोन. उसके बाद आपने इसकी रिडक्शन करनी है, लेकिन कीटोन चेंज नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड चेंज होना चाहिए. तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप जो वो जिंक इन एसिटिक एसिड यूज कर रहे हो. क्या यूज कर रहे हो? जिंक इन एसिटिक एसिड. तो एल्डिहाइड ग्रुप जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसकी रिडक्शन हो जाएगी. कीटोन जो कम रिएक्टिव होता है, इसकी रिडक्शन नहीं होगी. सो दैट वाज द डिस्कशन हाउ टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द फ्रक्टोज. देन द अनदर डिस्कशन, इट वाज कन्वर्जन ऑफ द फ्रक्टोज इनटू द ग्लूकोज. तो करना क्या है कि ये कार्बन एटम CHOH में कन्वर्ट होना चाहिए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है कि पहले इसको क्या कर दो, आप रिड्यूस कर दो. तो रिडक्शन इसकी करते हैं आप सोडियम अमलगम और वाटर से. सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सो इट इज ए एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट हियर, सोडियम अमलगम. सोडियम को डायरेक्टली वाटर में यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप सोडियम को जो वो मरकरी के साथ मिक्स करके जो वाटर में यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट विल गिव ए रिड्यूसिंग सोल्यूशन. So it will reduce this second carbon atom to CHOH. Whatever you are getting, that is termed as the sorbitol. क्या बोलते हैं इसको? Sorbitol. Once you oxidize it, then by the oxidation you will get the another structure here. Here you can get the acid group. Here you can get the acid group, because these are the primary hydroxyl group. They are oxidized by the nitric acid to the acid group. But intermediate product is formed, that is the one oxidized, one remains as it is. तो एक इसमें इसी वैसे बच गया, लेकिन एक की ऑक्सीडेशन हुई है. तो ये इंटरमीडिएट जो है वो बीच में स्टेप होगा, जिसमें कि एक ही ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरा ऑक्सीडाइज नहीं. इसको आप बोल सकते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. क्या बोल सकते हैं इसको आप? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. सो यू आर गेटिंग द ग्लूकोनिक एसिड. दिस इज टर्म्ड एज द ग्लूकोनिक एसिड. और ग्लूकोनिक एसिड को अगर आप हीट करते हैं, सो वाई हीटिंग यू विल गेट सम अनदर प्रोडक्ट हियर, एंड दैट इज दिस इज लैक्टोन दैट इज फॉर्म्ड. जब भी आप नेचर को हटके जो वो रिएक्शन करवाओगे, तो आपके पास 5 मेंबर रिंग बन रहा है. जबकि इसमें क्या है, 5th पे रिएक्शन हो सकता था यहां पर लैक्टोन बनने के लिए, लेकिन इसने क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स आर देयर. जो एस्टर बना, साइक्लिक एस्टर, दैट इज द 5 मेंबर्ड रिंग. जबकि नेचर के तौर पर क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है. सो दिस 5 मेंबर्ड रिंग इज फाउंड. वंस यू आर रिड्यूसिंग विद द सोडियम अमलगम एंड वाटर, upper portion it is changing into aldehyde, and lower portion it is changing into the alcoholic part. So that is the change of fructose into the you can say glucose that we have discussed in the previous lectures. Now there are numerous reactions which are given in your book, but not all are so important as the examination point of view. Here one more important part is there, how to increase the chain length and how to decrease the chain length. So this structure which is in front of you, it is a 5 membered component. You can check here, it is 1 2 3 4 and 5. So you can increase the chain length by the hydrocyanic acid, that will increase 1 carbon atom in the chain, and you can convert this pentose sugar, this is a sugar that is the pentose sugar, into a hexose sugar.
व्हाट इज द वे? इट इज द किलियानी फिशर सिंथेसिस. क्या बोलते हैं इसको? किलियानी फिशर सिंथेसिस. ओपन द बुक, you will find this Kiliani-Fisher synthesis. Open the previous exam paper, end semester examination paper or previous year papers. You can find there the question, what is Kiliani-Fisher synthesis? Means how to increase the chain length or how to increase one carbon atom into the you can say these carbohydrates. तो ये पेंटोज शुगर है. जैसे ही आप पेंटोज शुगर एल्डिहाइड को किससे ट्रीट करोगे? HCN से ट्रीट करोगे, you will get a cyanohydrin. That is cyanide, it is OH, so that is the modification of this aldehyde group. It is changing into the cyanohydrin. Plus करके मैंने शो कर रखा है यहां पर. So what is the effect of this? The effect of this is that you are not getting a single product, but simultaneously you are getting an isomer here. What is the change here? इस कार्बन एटम पे OH इस साइड आ रहा है, दूसरे कार्बन एटम पे OH इस साइड आ रहा है. तो जब हाइड्रोक्सिल इधर आएगा तो इसको हम मेनोज बोलते हैं, और हाइड्रोक्सिल इस साइड को आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं. सो वी आर गेटिंग द एपीमर्स हियर. क्या बनेंगे हमारे पास? एपीमर्स. सो साइनाइड ग्रुप इज देयर, सो वन कार्बन एटम हैज बीन इंक्रीज्ड. अब आपको मालूम है कि साइनाइड को आसानी से हाइड्रोलाइज करके आप किसमें चेंज कर सकते हैं? एसिडिक ग्रुप में चेंज कर सकते हैं. किसमें चेंज कर सकते हैं? एसिडिक ग्रुप में. सो वंस द above products they are hydrolyzed, we are getting here acid group at the top. We are getting here acid group at the top. So one is you can say gluconic acid, another one is the menoic acid. क्या बोलेंगे इसको? menoic acid. नीचे की चेन में यहां नहीं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि ये हमेशा कांस्टेंट सिमिलर रहेगी, तो इसको आपने याद भी कर लेना है. एग्जाम में भी आप डैश डैश करके छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसको कि जरूरी आपने दिखाना है. सो व्हेन यू विल हीट इट अगेन इट विल चेंज ए इलेक्ट्रॉन. अगर आप उसकी हीट करते हो उसको, तो उससे जो वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन बनेगा. अगेन 5 मेंबर रिंग. तो ये ग्लूकोज के केस में भी बनेगा, ये मेनोज के केस में भी बनेगा. एंड अगेन इफ यू आर यूजिंग द सोडियम अमलगम इन द वाटर, then that electron is changing into the aldehyde. So one product you are getting the glucose, another product you are getting the mannose. So that is the conversion of the, you can say this a pentose sugar into the hexose sugar. पेंटोज शुगर को जो वो आसानी से आपने हेक्सोज शुगर में जो है या ग्लूकोज में जो वो कन्वर्ट कर दिया. तो एक आपके पास ग्लूकोज बन रहा है, दूसरे आपके पास क्या बन रहा है? मेनोज बन रहा है. सो रिपीटिंग अगेन, वंस यू आर हैविंग ए एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द प्रीवियस वन, दिस वन, देन ट्रीट इट विद द हाइड्रोसाइनिक एसिड, यू विल गेट दिस साइनोहाइड्रिन हियर. साइनाइड को आप हाइड्रोलाइज करोगे, एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, दैट इज द एसिड एंड दैट इज द एसिड. एंड व्हेन यू विल हीट दिस, देन बाय द हीटिंग यू आर गेटिंग ए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन. और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन को आप सोडियम अमलगम और वाटर से जो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज द किलियानी-फिशर सिंथेसिस. इन द एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड 3 number question or 2 number question easily. What is the Kiliani-Fisher synthesis? Now see the next slide here. Degradation. How to convert a 6 carbon atom sugar into a 5 carbon atom sugar. So that is a glucose and I have to convert into a pentose sugar. तो नीचे जो सुगर यहां शो की हुई है, I think now it is visible, that is a pentose sugar. 1 carbon atom, 2, 3 and 4 and 5. तो इसमें चेन लेंथ को कैसे आपने डिक्रीज करना है. So there are 2 process. One is rough degradation, another is whole degradation. तो एग्जाम में ये भी आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाता है that what is rough degradation and what is the whole degradation. So how to do this? See here, the method is first bromine is used to oxidize the aldehyde group into the acid group. So you are getting a gluconic acid. Then calcium carbonate has been utilized to form the calcium salt of that gluconic acid. तो कैल्शियम कार्बोनेट से इसका जो है वो क्या बनेगा? ग्लूकोज का कैल्शियम साल्ट बनेगा. इसके ऊपर सिंगल वैलेंसी है
तो यहां पर कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव वैलेंस, ये मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि एक कैल्शियम के साथ 2 ग्लूकोनिक एसिड के यूनिट लगेंगे, तो एक ही शो किया, इसलिए कैल्शियम के नीचे क्या लगा रखा है? हाफ लगा रखा है। एंड व्हेन यू ऑक्सीडाइज इट with the help of the Fenton reagent. Fenton reagent is iron 2 positive in hydrogen peroxide. The whatever calcium salt is there, that is being liberated from here, as well as carbon is lost as a calcium carbonate, and at last you are getting here a pentose sugar. So that is the rough degradation way of decreasing the chain length. Next process, it is whole degradation method. Whole degradation method utilizes the oxime formation. So here the glucose unit is there. Glucose unit when treated with the hydroxylamine, then it is forming here aldoxime. This is the aldehyde and its oxime is formed. So we will say it is a aldoxime. So here it is glucoxime is formed because it is the total unit, that is the glucose. Once you are treating the glucose with the acetic anhydride. Acetic anhydride is this one. इसका क्या फंक्शन होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का? एसिटिक एनहाइड्राइड जो वाटर रिमूव करेगा, क्या रिमूव करेगा? वाटर. सो इट विल रिमूव वाटर फ्रॉम द सैंपल. तो यहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ रह गया है. इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए. सी हियर क्लियरली, क्योंकि ये CH है तो here it should be CHNOH. So one hydrogen from here and OH from here, that forms the water and it is lost. It is changing into the cyanide group. तो जब भी आप ऑक्साइम से वाटर रिमूव करते हैं, वाटर रिमूव करने के लिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूटिलाइज होता है. वाटर रिमूव करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी यूटिलाइज होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी चेयरिंग हो जाती है, ब्लैकनिंग हो जाती है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूटिलाइज नहीं होगा. पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट इसमें यूटिलाइज किया जा सकता है, और इसमें जो है वो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड यूटिलाइज किया जा सकता है, या फिर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड यूटिलाइज किया जा सकता है, या इसमें पैराटोल्यूइन सल्फोनेट यूटिलाइज किया जा सकता है, PTS. ये सब जो वो वाटर रिमूविंग रिएजेंट हैं. पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी यूटिलाइज किया जा सकता है. सो दैट कन्वर्ट्स C डबल बॉन्ड NOH इंटू CN, साइनाइड में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन एस्ट्रिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो ये हर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो एस्टर में कन्वर्ट करता जाएगा. सो दिस इज द एसिटेट पार्ट हियर, दैट इज द एसिटेट पार्ट हियर, दैट इज द एसिटेट पार्ट हियर. सो एवरी अल्कोहल विल चेंज इनटू द एस्टर. किसमें चेंज हो जाएगा? एस्टर. इवन लास्ट वन, वंस यू आर treating it with the silver nitrate, this cyanide is lost as silver cyanide. So this is lost, but this portion is oxidized to CHO group, as well as all the groups they are being hydrolyzed with ammonium hydroxide and they are giving a at last pentose sugar. क्या बन रही है इससे? साइनाइड एज ए सिल्वर साइनाइड रिमूव हो गया, ये कार्बन ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में चेंज हो गया, और रिमेनिंग दे आर लॉस्ट एज एन जो एसिटेट पार्ट इज लॉस्ट एज एन एसिटिक एसिड, एंड दीज आर लेफ्ट एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो दैट इज ए पेंटोज सुगर. क्या ये? पेंटोज सुगर है. तो ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है. रफ डिग्रेडेशन, होल डिग्रेडेशन, किलियानी फिशर सिंथेसिस, म्यूटा रोटेशन. तो ये आपने जो एग्जाम के तौर पर इनको जो वो प्रिपेयर करना है. देन नेक्स्ट पार्ट, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट and very simple component that we are going to discuss. sucrose, ये चीनी है जिसको हम घर में यूटिलाइज करते हैं. now see, very simple term, when we say sugar, it means it is the cane sugar that we are going to utilize in the house. What formula it is having, that is little bit complicated. So already I said, or repeatedly I said, that very simple compound to it, but very difficult in order to understand by the way of chemistry, because these are the natural components and nature play its own role to manage the all chemical processes. Whenever sucrose is hydrolyzed, the structure which is lying sidewise here, that is the structure of the sucrose, चीनी की structure है ये.
तो जब भी सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं वी गेट द टू कंपोनेंट, वन एज द ग्लूकोज, अनदर एज द फ्रक्टोज. वी फाइंड दैट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द अल्फा डी फॉर्म, वट फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द बीटा फॉर्म. तो देखो जरा इसको, इसका फर्स्ट कार्बन एटम, वैसे तो लिखने का मेरा एक ही तरीका था कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और इसी वे में इसको लिखा जा सकता था, किसको, फ्रक्टोज की यूनिट को. लेकिन फ्रक्टोज का यूनिट अब उल्टा लिखा गया, दैट इज द वन, दैट इज द सॉरी दिस इज वन, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कार्बन एटम. इसमें OH ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये बीटा डी फ्रक्टोज आएगा. क्या बोलेंगे इसको, बीटा डी फ्रक्टोज. सो दैट इज द अल्फा, दैट इज द बीटा, एंड देर इज ए लिंकेज बिटवीन दीज टू. इट इज टर्म्ड एज द बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. अब बीटा लिंकेज क्या होती है, जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ हो. सो सी हियर, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डाउन एंड अनदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज टुवर्ड द अपर साइड. तो जब दोनों की कंडेंसेशन होगी तो उससे जो बॉन्ड बनेगा या लिंकेज बनेगी, उस लिंकेज को हम बोलेंगे बीटा लिंकेज. क्या बोलेंगे हम, बीटा लिंकेज. अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही साइड को हो तो उस लिंकेज को, जो भी लिंकेज उससे बनेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा लिंकेज. किसका कौन सा कार्बन एटम इन्वॉल्व है वो वहां पर आपको लिखना होता है. ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम इन्वॉल्व है, दैट इज द फर्स्ट, और इसका जो है वन, दिस वन, इट इज सेकेंड वन, इसका सेकेंड कार्बन एटम इन्वॉल्व है. तो इसीलिए इसको मैंने लिखा है बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. क्या लिखा है इसको, बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सक्रेज एंड माल्टेज आर द टू एंजाइम्स विच हाइड्रोलाइज दीज. माल्टेज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करती है. तो माल्टेज इसके ऊपर एक्टिव है, किसके ऊपर, चीनी के ऊपर, उसको हाइड्रोलाइज कर देती है. तो माल्टेज इज स्पेसिफिक फॉर द अल्फा डी ग्लूकोज. तो वहां से थोड़ी सी इंडिकेशन आती है दैट वट एवर द डाइसैक्राइड इज देयर, दैट इज हैविंग वन कंपोनेंट एज द अल्फा डी ग्लूकोज. और जो सेकंड कंपोनेंट है सक्रेज, इट इज हाइड्रोलाइजिंग इट. सक्रेज इज इफेक्टिव फॉर द बीटा डी फ्रुक्टोज. तो इसका मतलब सेकंड कंपोनेंट इसमें जो है वो बीटा डी फ्रुक्टोज है. सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बाद में डिस्कस करेंगे कि नॉन रिड्यूसिंग क्यों है. इसको आप जो स्ट्रक्चर को जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में लिखना है, आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल डिस्कस करेंगे.